Good morning, my dear student. So I discussed with you last time कि in the book naturally exercise is given for your practice. Theoretical problems you have to write yourself. Numerical and objective, please make a tick on the book only by to waste the time in writing. And numericals, each and every numerical, I will try my level best to do it myself. So we divide it in the three categories. Objective, true, false, filling the blank, that we will leave in the book only. Written answer, actually it is depending on the language, and every person's language is different and we have to develop it in our own style. So due to that I am leaving on you how to write the answer. But it means not that I will not help you. If you are not able to understand any answer or you are confused how to express, you can ask me, maybe on the WhatsApp, maybe on a telephone call, or yeah, when school open, then at that moment directly in the class, so how to answer that question. Then I will certainly help you and I will be happy to help. And numerical, as the numerical is having the fixed language, so I am going to do it for yourself. You are requested to go with me. I hope you understand. Now, question number 1, numericals, page number 25. In a simple pendulum, make 40 oscillations in 1 second. So, number of oscillation is 40 and time is 1 minute. But minute is not a standard unit, so I convert 1 minute into 60 seconds. Now, what is the frequency? Frequency is the number of oscillation per second, यानी कि number of oscillation upon time. So, naturally this is given 40, this is given 60 after cutting 2 by 3. So, 2 by 3 oscillations per second is the frequency. Now, they are asking what is the time period. तो कल मैंने आपको example देके बताया था, time period and frequency are reciprocal of each other. If one is given, reciprocal with other. Means if time period is 2, frequency is 1 upon 2. If frequency is 2, time period is 1 upon 2, reciprocal of each other. So now you already find out the frequency 2 upon 3. So time period will be naturally reverse of it. 2 upon 3 का reverse 3 upon 2. So time period is 3 upon 2 यानी कि 1.5 seconds. Okay, so it is better to write it as mixed fraction. Okay, now come to the question number 2. They are saying that the time period of a pendulum is 2 seconds. What will be the frequency? I just talked to you. Kya? Frequency and time period are reciprocal of each other. So if natural time period is 2, frequency will be reciprocal of 2, that is 1 upon t, that is 1 upon 2, 0.5 seconds. Now they are asking what is the name of this type of pendulum. So beta, you know the definition. If a simple pendulum time period is 2 seconds, then pendulum is known as the second pendulum. या ये कह लो, in a second pendulum, time period of the oscillation, one complete oscillation is 2 seconds. And actually, they are already given it takes 2 seconds. So it indirectly they are saying we are talking about a second pendulum. I hope you understand it. Now, my dear student, question number 3. They are saying that I am having a second pendulum. Forget the second pendulum, I am having a pendulum. And they are saying that I am using it. And accidentally I go to a place, maybe a laboratory, maybe any other planet, where the acceleration due to gravity become 1/4. जैसे मून पे 1/6 है. तो what will be the impact on the time period? तो मुझे याद आया कि for simple pendulum हमारा फॉर्मूला होता है T is equal to 2 pi under root L upon G. Let us remove this under root T square, 2 square, pi square, L, G. Now, case 1, because normally हम लोग क्या करते हैं, let time था x, acceleration due to gravity थी pi. तो here I put x, that become x square. Here I put y, that become y, 4 pi square L as it is. This y get multiply x square y बटे 4 pi square L. अब मैं आया सेकंड केस में. इन सेकंड केस व्हाट दे से कि ग्रेविटी जो थी 1/4 होगी, g is equal to 1 upon 4y. तो नेचुरली फॉर्मूला तो वही रहेगा, t square is equal to 4 pi square L g, t square 4 pi square L upon g. 4 pi L square को ऊपर ले लिया, g को नीचे ले लिया. फिर मुझे याद आया 4 pi square L, 4 pi square L की वैल्यू क्या होती है, x square y, और g की वैल्यू क्या ले चुका हूं, y upon 4 या 1 upon 4 y. After
आफ्टर दैट व्हाट हैपन, वाई वाई कैंसल एंड अपॉन का 4 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो टी स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर, तो व्हाट विल बी देयर टी, 4 का स्क्वायर रूट x स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि पहले टाइम पीरियड कितना था x, अब कितना बन गया 2x, यानी कि टाइम विल बी डबल, सो दैट टाइम इज डबल या टाइम विल बी डबल। अब उन्होंने बोला कि मेरे पास तो सेकंड पेंडुलम था, तो मेरा कितना होगा, तो हमने कहा कि सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है 2 सेकंड्स, तो 2 का जब डबल होगा तो हाउ मच 4 सेकंड, तो 4 सेकंड इज द आंसर। प्लीज लिसन वन टाइम, फॉर सिंपल पेंडुलम दिस इज द इक्वेशन, I go for squaring because I personally and most of you personally don't want to work in the under roots, so I go for the squaring. This g get now t's value is x, g's value is y, that I assume for the first case क्या normally क्या होता था, तो naturally this y multiply here and this 4 pi square multiply here, तो this is the value of 4 pi square है। अब मैं सेकंड केस, उन्होंने कहा कि भाई मेरा जो टाइम पीरियड के बारे में तो कुछ नहीं बताया, पर उन्होंने कहा कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था 1/4 हो गया, तो यानी कि g इज 1/4 ऑफ द ओरिजिनल, यानी कि 1/4y। नाउ दिस इज 1/4y, लेट मी इंसर्ट इन प्लेस ऑफ g, 4 pi square x वैल्यू इज x स्क्वायर y, तो y y कैंसल, अपॉन का 4 ऊपर जाएगा तो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई का 4x स्क्वायर, तो t स्क्वायर का t, 4 का 2, x स्क्वायर का है, तो टाइम पीरियड इज 2x, यानी कि टाइम पीरियड इज डबल, टाइम पीरियड इज डबल। नाउ फॉर सेकंड पेंडुलम, अब उनका सॉरी पेंड लिख दिया मैंने, पेंडुलम फॉर सेकंड पेंडुलम ओरिजिनली टाइम पीरियड कितना था 2 सेकंड, अब मैं कह रहा हूं डबल, तो कितना हो जाएगा 4 सेकंड। मान लो कोई और पेंडुलम होता, वो कहते हैं टाइम पीरियड इज 1.5 सेकंड, तो मैं कहता डबल हो गया, यानी कि 3 सेकंड। Okay, I hope you understand it. That is the manner in which you will write the answers. Now, question number 4. They are saying that approximately acceleration due to gravity is 10. वैसे nearly 9.8 के करीब होती है. They make it 10. And they are saying that if we take the pi is equal to 3.14. याद रखना pi की वैल्यू भी 3.14 या 22/7 नहीं होती। These are the just approximation हम लोग लेते हैं कि यार almost इसके पास, okay, now they are saying that कि as it is the second pendulum, तो मैंने अपने आप ही ले लिया time period is equal to 2 seconds, तो they are asking what will be its length, तो मैंने क्या किया सिंपली हमारा फॉर्मूला t is equal to 2 pi under root L upon g, I go for squaring, go for squaring, go for squaring, go for squaring, फिर मुझे याद आया t की वैल्यू है 2, तो टी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4 एज इट इज, पाई की वैल्यू है 3.14, तो ये हो जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई 3.14 बिकॉज इट इज द स्क्वायर, एल हमारे को निकालना है और जी की वैल्यू है 10, 4 4 गेट कैंसल, ये 10 डिनोमिनेटर में था, व्हेन शिफ्ट हियर टू कम टू न्यूमरेटर, 3.14 न्यूमरेटर में थे, व्हेन शिफ्ट देयर दे कम टू द डिनोमिनेटर। तो नाउ बेटा लिसन, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 3.14 तो इसकी वैल्यू आएगी ऑलमोस्ट 9.85 समथिंग, और ऊपर क्या है 10, और जो भी एक्चुअल में क्या था 9.8 समथिंग, तो 9.8 समथिंग अगर आप डिवाइड करेंगे, अगर तो आपके पास टाइम है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप अप्रोक्सीमेटली 1 लिख सकते हैं। प्लीज दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 9.8 के आसपास होती है। दीज आर द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द पाई, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी वैल्यू भी 9.85 समथिंग आएगी, तो नेचुरली एक है 9.8 समथिंग और एक है 9.85 समथिंग, तो नेचुरली जब डिवाइड करेंगे यार दे आर आइडेंटिकल, तो ऑन डिवीजन यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली 1, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर नॉर्मल सर्कमस्टांस में अगर आप 1 सेकंड पेंडुलम बनाना चाहते हैं, अगर आप सेकंड पेंडुलम बनाना चाहते हैं तो यू हैव टू टेक द लेंथ ऑफ 1 मीटर, अंडरस्टैंड। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इन्होंने कहा आई एम हैविंग द 2 पेंडुलम्स, वन पेंडुलम लेंथ इज 1 मीटर, अदर्स पेंडुलम लेंथ इज 9 मीटर,
Gravity is same for both because they are at the same place. So they are asking what will be the ratio of their time. I am having the two pendulum, एक में हमने 1 मीटर ले लिया और एक में पूरा 9 मीटर ले लिया और दोनों को ऑसिलेट किया और उसकी टाइम पीरियड निकाला. तो वो पूछे कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर टाइम पीरियड. ओके, तो सबसे पहले फॉर्मूला वही जो वहां पे दिख रहा है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी. फर्स्ट केस के अंदर प्लीज पहले मैंने स्क्वायरिंग कर दी, अंडर रूट मोस्टली मैं हटा लेता हूं ताकि कंफ्यूजन आ रहा है मल्टीप्लिकेशन में. टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर डॉट एल. फर्स्ट केस में मैंने एल की जगह पे 1 ले लिया, सेकंड केस में मैंने एल की जगह पे 9 मीटर ले लिया. एंड दे आर आस्किंग द रेशियो. रेशियो का मतलब होता है डिवीजन या कंपैरेटिव स्टेट. तो व्हाट आई डू, आई डिवाइड इन t1 स्क्वायर बाय t2 स्क्वायर. 4 पाई स्क्वायर 1 अपॉन g डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर 9 अपॉन g. 4 पाई स्क्वायर g कैंसिल. व्हाट इज लेफ्ट 1, व्हाट इज लेफ्ट 9. अब देखिए ये क्या है, t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर, तो ये क्या है 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायरिंग कैंसिल कर दी. तो t1 is to t2 is equal to 1 is to 3. तो नेचुरली दैट टाइम पीरियड विल बी इन द रेशियो 1 is to 3. अगर पहला वाला पेंडुलम 1 सेकंड में घूम रहा है तो दूसरा वाला 3 में घूमेगा. फर्स्ट अगर 2 सेकंड में घूम रहा है तो दूसरा वाला 6 में घूमेगा. अंडरस्टैंड? एनी डाउट प्लीज? फिर सुन लीजिए मेरी बात. आपके पास दो पेंडुलम थे, एक की लेंथ थी 1, एक की लेंथ थी 9. दोनों का टाइम पीरियड आपको नहीं पता था. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम मानी जाएगी. क्यों? क्योंकि दोनों एक ही जगह पे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं. फार्मूला होता है t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल जी. मेरी आदत है मैं स्क्वायरिंग कर लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे ऑफ कैलकुलेशन एंड अंडर रूट. फिर मैंने फर्स्ट वाले में l की वैल्यू 1 डाली, फिर दूसरे वाले में मैंने l की वैल्यू 9 डाली. आफ्टर दैट क्योंकि मुझे रेशियो निकालना था तो नेचुरली मुझे डिवाइड करना पड़ेगा. तो आई डिवाइड दिस बाय दिस, आई डिवाइड दिस बाय दिस. तो 4 पाई स्क्वायर एंड g कैंसिल. व्हाट इज लेफ्ट 1, व्हाट इज लेफ्ट 9. नॉट t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर 1 स्क्वायर एंड दिस इज 3 स्क्वायर. स्क्वायरिंग कैंसिल कर देते हैं. ये रह जाएगा t1 t2, ये रह जाएगा 1 3. दैट इज द आंसर. आई होप यू पीपल विल अंडरस्टैंड इट एंड प्लीज डू इट योरसेल्फ. प्लीज. Now my dear student, question number 6. Number of oscillation is 2 and for that 2 oscillation time is 5 seconds. या a pendulum take 5 seconds for 2 oscillation. So simply for 2 oscillation, if it is taking 5 seconds, for 1 oscillation it will take 2.5 seconds. That is the time. By common sense भी कर सकते हैं, otherwise simple सी बात है, time divided by number of oscillations. As now they are asking that what will be the length. So naturally you know that t is equal to 2 pi under root l upon g. T square is equal to 4 pi square l upon g. Now t वैल्यू क्या है 2.5 या 5/2 आपकी मर्जी है. तो I had taken 5/2, स्क्वायरिंग क्या हो गया 25. This 4 as pi square, pi का है 22 upon 7. तो 22 upon 7 into 22 upon 7 L और G की वैल्यू है 9.8. Now बेटा लिसन, this 4 7 9.8 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाएगा. 7 7 9.8 will come to the numerator और 4 22 22 on cross multiply will come to the denominator. ओके, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा. अप्रोक्सीमेटली 1.5 समथिंग आपका आंसर आ जाएगा. ओके, प्लीज टाइम वेस्ट ना, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं, क्योंकि काफी सारी कैलकुलेशन है. बिकॉज दीज आर 11 11 मल्टीपल एंड दीज आर द 7 7 मल्टीपल, तो कोई कटिंग नजर नहीं आ रही मुझे. सो ड्यू टू दैट आई एम लीविंग इट. अप्रोक्सीमेटली 1.5 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा. प्लीज टेक इट. ओके, याद रखिएगा. 2 ऑक्सीलेशन में लगे 5 सेकेंड, तो एक ऑक्सीलेशन में कितना लगेगा? आधा, यानी कि 2.5 सेकेंड. तो दैट इज द टाइम पीरियड. फिर उन्होंने कहा टाइम पीरियड तो मिल गया, आप बताओ लेंथ कितनी है. तो हमने कहा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी. 2 की वैल्यू नेचुरल, सॉरी पहले स्क्वायरिंग कर दी. 4 एज इट इज, पाई होता है 22/7. आपको नॉर्मली ऐसे आता है, आप 3.14 भी ले सकते हैं. तो नेचुरली 22/7 22/7. g की वैल्यू 9.8 क्वेश्चन में उन्होंने दे रखी है. ओके, t की वैल्यू 5/2 थी, स्क्वायर होने का 25/4. साइड की शिफ्टिंग कर दी तो L इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 1.5 मीटर लेंथ होगी उस पेंडुलम की.
ओके, चलिए कम टू द क्वेश्चन नंबर 7. Now my dear students, they are saying that the ratio of the time period is 2:1. What will be the ratio of the length? तो बेटा एक तरीका तो ये जैसे हमने पहले किया था 1 मीटर और 9 मीटर वाले का आंसर आया था 1:3. पर नेचुरली क्या होता है कि हम लोग के पास कई बार इतना टाइम नहीं होता, वी यूज द फॉर्मूलाज डायरेक्ट. तो याद रखिएगा व्हाट एवर इज द रेशियो ऑफ द टाइम पीरियड, लेंथ विल बी डुप्लीकेट. डुप्लीकेट का मतलब होता है स्क्वायर. याद रखना, लिसन, रेशियोज का जब हम स्क्वायर करते हैं तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डुप्लीकेट. और जब हम रेशियोज का स्क्वायर रूट करते हैं तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है, टर्म होती है सब डुप्लीकेट. प्लीज याद रखिएगा, जब किसी रेशियो का स्क्वायर करना पड़ जाए तो आप कहेंगे मैंने डुप्लीकेट कर दिया. जैसे मैंने कहा 2:3 और आपने बोल दिया 4:9 और मैं बता रहे क्या कर दिया, तो आप कहोगे सर डुप्लीकेट कर दिया. या मैं आपको बोलता हूं 16:25 और आप बोल देते हैं 4:5, तो मैं कहूंगा क्या कर दिया, तो आप कहोगे सब डुप्लीकेट. याद रखना, स्क्वायरिंग का मतलब डुप्लीकेट और स्क्वायरिंग का उल्टा होता है स्क्वायर रूट, तो डुप्लीकेट का उल्टा सब डुप्लीकेट. याद रहेगी ये बात? गुड. तो उनका टाइम पीरियड का रेशियो क्या 2:1, तो लेंथ का रेशियो क्या होगा डुप्लीकेट यानी कि स्क्वायर 4:1. ये मैंने नीचे लिख दिया है, द रेशियो ऑफ द लेंथ इज डुप्लीकेट ऑफ द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड. इस तरीके से मैं फर्स्ट क्वेश्चन भी कर सकता था. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता, गिवन द लेंथ 1 मीटर 9 मीटर, सो रेशियो 1:9. तो रेशियो ऑफ लेंथ इज 1:9, सो रेशियो ऑफ द टाइम विल बी 1:3. और नीचे ब्रैकेट में लिखता एज द रेशियो ऑफ द टाइम इज सब डुप्लीकेट ऑफ द लेंथ. याद रहेगा बेटा, अगर हम किसी रेशियो को स्क्वायर करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डुप्लीकेट. और जो हमारा टाइम का रेशियो होता है उसका स्क्वायर हमारी लेंथ का रेशियो होता है, और जो हमारी लेंथ का रेशियो होता है उसका स्क्वायर रूट हमारे टाइम का रेशियो होता है. और उस केस में हमारे को वर्ड यूज करना पड़ता है सब डुप्लीकेट. चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 8. इन्होंने कहा एक पेंडुलम था, वो मेन पोजीशन से कोने में गया और 0.2 सेकंड्स लगे. तो बताओ टाइम पीरियड कितना होगा. हमने कहा यहां से यहां तक 0.2 सेकंड लगे, और टाइम पीरियड क्या होता है यहां से यहां फिर वापस, यानी कि पूरी जर्नी. पहले इधर गए, फिर इधर गए, फिर वापस आ गए. दैट कंप्लीट जर्नी इज द टाइम पीरियड. तो इधर से इधर 2 सेकंड, फिर इधर 0.2, फिर 0.2, फिर 0.2. देखो 0.2, 0.2, 0.2, 0.2. देयर आर 4 पार्ट्स आर देयर. प्लीज इस जर्नी के देखिए 4 हिस्से हैं, 1 2 3 4. हर किसी में आपके लगे 0.2, तो टोटल टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 4 टाइम ऑफ इट, दैट इज 0.8 सेकंड. ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, इसका न्यूमेरिकल से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए मैंने फिगर बना दी ताकि आपको पता चल जाए. फिर सुन लीजिए, मेन पोजीशन से कॉर्नर में जाने में लगे 0.2 सेकंड, और वो कह रहे हैं पूरा टाइम पीरियड क्या होगा, यानी कि पूरी जर्नी. तो हमने कहा पूरी जर्नी क्या होती है, एक एंड दूसरा एंड वापस. तो हमने कहा यहां से यहां 0.2, वापिस आया 0.2, दूसरी जगह गया 0.2, फिर वापस आया 0.2. तो यानी कि 0.2 into 4, 0.8 सेकंड इज द टोटल टाइम पीरियड. आई होप यू टेक केयर ऑफ इट. नाउ माय डियर स्टूडेंट, द लास्ट क्वेश्चन. दे आर सेइंग आई एम हैविंग अ सेकंड पेंडुलम. अब नेचुरल सी बात है, इफ इट इज अ सेकंड पेंडुलम then it goes to here, then come back here and come back. If this is x, तो this is x, वापिस x, फिर x, वापिस x. तो कितनी जर्नी हो गई x x x x 4x. तो जर्नी कितनी हो गई 4x. और सेकंड पेंडुलम है, क्योंकि ये चीज है सेकंड पेंडुलम, तो टाइम कितना लगेगा 2 सेकंड्स. फिर सुन लीजिए, हेयर 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 हेयर, 4 टुकड़े हैं इसके. अगर मैं एक टुकड़े को x मानूं तो ऑल आर इक्वल, तो x x x x 4x. और टाइम कितने लगे 2 सेकंड. व्हाई? बिकॉज इट इज अ सेकंड पेंडुलम, और डेफिनेशन बोलती है ए सेकंड पेंडुलम्स टाइम पीरियड इज 2 सेकंड्स. फिर मैंने कहा अगर 4x के लिए लगे थे 2 सेकंड, तो 1x के लिए कितना लगा होगा 2/4.
और 2x के लिए कितना लगा होगा 2/4 into 2 that is 1 second। और एक एंड से दूसरे एंड अगर आप जाएंगे तो कौन सा वाला रास्ता है, ये वाला। इसकी लेंथ कितनी है x plus x 2x, और 2x के लिए टाइम कितना है 1 सेकेंड, राइट। तो इन सेकंड पेंडुलम फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड 1 सेकेंड, रिटर्न 1 सेकेंड, एंड इन वन ऑसिलेशन इट टेक्स 2 सेकेंड। ओके, तो ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कम, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ज्यादा थी, बट जब इसको एज ए न्यूमेरिकल देंगे तो आप उसको वर्डिंग में नहीं बोल सकते जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, तो यू हैव टू रिप्रेजेंट लाइक दिस। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। मैं फिर आपको बोल रहा हूँ पार्ट बी वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गॉज आई एम नॉट टेकिंग नाउ बिकॉज प्रैक्टिकली यू डोंट हैव एक्सपीरियंस ऑफ दीज टू। Once the school will open, I will give it to you and then I will take that chapters part and tomorrow we will start the next. Okay, till then, thank you. Have a nice day. God bless.